एक शॉप था विच वॉज ओन्ड बाय अ पॉलिटिकल लीडर, तो उधर कोई रेड करने की हिम्मत नहीं करता था क्योंकि उसको मालूम था मेरे ऊपर कोई रेड नहीं करेगा। वो जगह में हम लोग जब ये रेड किया तब तक वो पॉलिटिकल लीडर वहाँ पे पहुँच गया और उसने लिटरली पुलिस का हाथ खींच के, उसका पेन खींच के फेंक दिया, बोला इधर निकलो यहाँ से। और थोड़ी थोड़ी देर के बाद इतना मॉब जमा हो गया ना वहाँ पे और सबके हाथ में लाठी। Hi, my name is Janvi, and welcome to another episode of Breaking It Down. In today's segment, we're exploring piracy in India, the raids, the connection to the underworld, the police department, and everything to do with all of this interesting stuff that we've been wanting to do on this channel for a while now. So, without any further ado, let's hop right into the episode. So, to share some amazing insights, great deal of information, and first hand experience in the field, we have on board Mr. Sanjeev. Now, back in the 90s and early 2000s, when piracy in Mumbai was a huge deal, Julio Francis Ribeiro, who is the former commissioner of Mumbai, started a separate unit called Indian Music Industry, better known as IMI, which was basically created to eradicate piracy in Mumbai. And Mr. Sanjeev was an integral part of this unit who worked with and under Julio Francis Ribeiro. Now, he has some great stories with regards to raids, how they did it. So, he's basically what we see in movies, and it's a very interesting episode for both of us. This is also something we're trying for the first time when both of us are hosting the show together. So, we hope you enjoy this just as much as we are probably going to. Okay. So, जैसे मुझे पता है, you have been doing this job for a very long time, जो आपने किया था. How did you enter this field and आपका exactly काम क्या था? क्या करते थे आप? See, actually, basically, I'm a microbiologist. So, nothing about piracy nor any police job, nothing. But somehow, the place where I worked, it happened to, it was not working very well. So, we were told to quit the job. And I was looking about for jobs when I got an ad in newspapers that they need investigators having the knowledge of music. Coincidentally, because that time I was also a part-time stage singer, so I had a good knowledge of music. And when I read this ad, I was also interested in थोड़ा डिटेक्टिव एंड लाइक इन्वेस्टिगेशंस एंड ऑल. तो पहले से ही वैसा मेरा एक शौक था. तो आई सेड लेट्स आई कॉल देम एंड आई जस्ट हैव एन इंटरव्यू विद देम. क्लिक हुआ तो ठीक है, आई सेड, बट इट वाज कंप्लीटली न्यू फॉर मी. सो आई अप्लाइड देयर, आई गॉट अ कॉल एंड आई वाज कॉल्ड फॉर एन इंटरव्यू. व्हेन आई एंटर्ड दैट ऑफिस एंड इनसाइड दैट केबिन, I was, surprised to see the ex-commissioner of police, Julius Ribeiro, sitting in front of me with his daughter, Nina, engineer. And there was one more very big officer of India. He's from IB section, Mr. B.P. Bam. So I was not knowing B.P. Bam, but Julius Ribeiro, everybody used to know him because he has done great jobs for the country. So when they started interviewing me, पहले तो they asked me whether you have any background of police. I said no, nothing about police. But the only thing is, my grandfather was a superintendent of police. So I told them that from that time, once he retired, none of my family members went in police. So I said that is the only family background of police which I have. So that's fine. Then what about music? Then I told that I'm a stage singer and everything. So they also thought that we'll give it a try from your side. But they wanted an NCC guy or a police guy. मेरा तो कुछ नहीं था ऐसा, but they thought he has got a good knowledge of music. And plus थोड़ा पुलिस बैकग्राउंड तो है, खून में है पुलिस. तो उन्होंने बोला ठीक है, फिर नेगोशिएशन टर्म्स वगैरह हो गए एंड देन दे सेड ठीक है करते. That's how I entered this field. बट करना क्या था? वो लोग ने पहले तो पायरेसी क्या था वो मेरे को भी मालूम नहीं था, क्योंकि मेरे को एक्चुअली जॉब वो लोग ने बाद में समझाया. फर्स्ट डे व्हेन आई वेंट देयर, वो लोग ने बोला कि ऐसा ऐसा वी आर गोइंग टू डू रेड्स
and you are appointed as an investigating officer. So they wanted civil guys who will go into the market and they will survey and they will detect where this infringement is going on, copyright infringement. तो पहले तो मैंने समझा नहीं है copyright infringement क्या होता है. तो he had a team of all retired officers. See, he had formed a team of all non-corrupt guys. Like there was Mr. Tambe and ACP Moge. All were non-corrupt guys during his tenure in police. So with them he had made this team and he had employed 3 guys from civil background just for this survey and detecting. So copyright के बारे में बोला तो मैंने पूछा क्या है. तो it seems के this was related to only audio industry. Because IMI is Indian music industry which doesn't look after video piracy. So IMI is formed, it's an association of 60 music companies all over India. Okay. The main parent company being HMV and Polydor. Polydor now is Gramophone something, they changed the name. So after that, this association was formed. वो लोग बोला कि कहाँ पायरेसी हो रहा है मीन्स उनका डुप्लीकेशन कहाँ से होता है. तो इनका राइट्स जो होता है, म्यूजिक राइट्स जो कॉपीराइट होता है, दीज आर ओन्ड बाय कंपनीज लाइक टिप्स है, वीनस है, HMV है, हाँ, ऑल म्यूजिक कंपनीज. ये म्यूजिक कंपनी का कॉपीराइट उनके पास रहता है तो कोई और उसको रेप्लिकेट नहीं कर सकता या प्रोड्यूस नहीं कर सकता विदाउट देयर परमिशन. तो वी हैव टू डिटेक्ट दैट समबडी इज डूइंग दिस इलीगली. तो whosoever is recording a song, सादा तुम घर में भी अगर रिकॉर्ड करते हो और बेचते हो, see when you earn a profit out of it, then it becomes illegal. तो अपने खुद के लिए कर रहे हो तो it's not illegal. But if you are earning money out of it, it becomes a infringement, copyright. तो ऐसे करके हम लोग को बोला कहाँ चल रहा है पहले देखो. हम बोला ठीक है पहले तो समझ लेंगे जॉब क्या है. And second part was understanding the police job कि क्या क्या करना पड़ता है पुलिस में. इसके लिए of course they had police officers doing job for them, but हम लोग को भी समझना था. तो they said आप पहले सर्वे करके आओ मार्केट में. Now in Mumbai the biggest market for audio industry is Grant Road, Lamington Road, where there is a lane called Tribhuvan Lane. उधर सब यू कैन फाइंड ऑल ऑडियो शॉप्स एंड एवरीथिंग. तो हम लोग को पहले वहाँ पे सर्वे करने गए. हम लोग को पहले कुछ समझा नहीं था. सब टाइप के कैसेट्स से, जैसे लेमैन के लिए जैसा एक कंपनी है टिप्स है, वीनस है, उसके तो कैसेट्स आप देते थे. कोई भी मूवी आया, समझो एक्स मूवी आया, उसका एक कैसेट निकल गया तो वो कंपनी टिप्स का है तो उस पर टिप्स का लोगो आता था. लेकिन दैट टाइम मार्केट में ऐसे भी आप देखते हैं कंपाइलेशन ऑफ सॉन्ग्स था ऑफ डिफरेंट मूवीज, लाइक अलग अलग मूवी के कंपाइलेशन करके वो लोग बेचते थे. दैट इज इन्फ्रिंजमेंट. यू कैन नॉट डू दैट. एक कंपनी एक अपने ही गाने जो उसके पास कॉपीराइट है वही उसकी कैसेट निकाल सकता है. कोई भी रिकॉर्ड करके एक टिप्स का गाना, एक वीनस का गाना, एक HMV का गाना, ऐसा कंपाइलेशन करके यू कैन नॉट डू इट. सो दैट इज पायरेसी. विदाउट देयर परमिशन यू कैन नॉट डू इट. सो आई वांट टू नो, थोड़ा बैक ट्रैक करते हैं, इसकी शुरुआत कैसे हुई एंड व्हाट वाज द स्केल जिस पे ये काम चल रहा था कि इसके लिए एक सेपरेट यूनिट बनाया गया. तो हाउ डिड इट बिगिन एंड हाउ डिड इट ग्रो टू दैट पॉइंट वेयर दे हैड टू क्रिएट एन एंटायर यूनिट टू स्टॉप इट. पहली चीज़ तो यह है कि कॉपीराइट का यूज़ क्या होता है, मतलब कॉपीराइट लॉ क्यों बनाया. द बेनिफिट ऑफ कॉपीराइट इज अगर कोई कुछ गाने का एल्बम बनाता है तो वॉट एवर प्रॉफिट्स द कंपनी इज अर्निंग. अभी एक जन ने कोई एल्बम बनाया तो उसका कॉपीराइट्स एक कंपनी ले लेता है. फिर उसका जो अर्निंग्स होता है दैट इज गिवन टू एवरीवन, ऑल द आर्टिस्ट इन्वॉल्व इन दैट एल्बम, इंक्लूडिंग द लिरिसिस्ट, म्यूजिशियंस, जिसने ये गाना प्रोड्यूस किया, जो गाया, सबको. इसमें सबका 2 पैसा होगा, 2 पैसा पर यूनिट, बट वो सबको जाता है. तो क्या होता है, एवरीबडी इज बेनिफिटेड एंड दिस हैपन्स ओनली इन इंडिया क्योंकि म्यूजिक जिंदा रहा बिकॉज ऑफ
पायरेसी। मतलब पाकिस्तान में आज नहीं है, पाकिस्तान में आज कोई भी किसी का भी गाना रिकॉर्ड कर रहा है, इसके लिए म्यूजिक इंडस्ट्री उधर का मर गया। अपने यहाँ पे इट इज स्टिल देयर आर स्टिल कंपनीज हु आर प्रोड्यूसिंग म्यूजिक बिकॉज दे हैव मनी, क्योंकि उनको अपना पैसा खुद का मिल रहा है। लेकिन इन अदर कंट्रीज वेयर ऐसा कोई यूनिट नहीं है जैसा इंडियन म्यूजिक इंडस्ट्री है, तो उधर भले ही सब जगह पायरेसी होता है और वहाँ पे फिर कंपनीज ऑल गो इन लॉसेस, आर्टिस्ट के पास पैसा नहीं होता है। आज आप देखोगे कि पाकिस्तान का एक आर्टिस्ट कोई भी हो, वो इंडिया में आता है कोई भी उसका एल्बम कट करने के लिए, ही कम्स टू इंडिया टू प्रोड्यूस हिज एल्बम। क्यों? क्योंकि वहाँ पे कुछ नहीं होता कि उसने वहाँ पे वर्क किया भी तो उसको 2 पैसा मिलने वाला नहीं, उधर सब पायरेसी से ही चलता है और इनको जो म्यूजिक कंपनी रहता है ना उसको कुछ भी नहीं मिलता है। तो इसीलिए दिस यूनिट वाज फॉर्म्ड एंड ये पहले से ही चलता आ रहा है। कॉपीराइट लॉ वाज देयर सिंस 1957, जब से बुक्स बन रहा था। बुक्स आल्सो हैज कॉपीराइट, दिस इज बेसिकली इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट, IPR बोलते हैं उसको। तो इसमें जो लोग जिसका हक होता है उसको पैसा मिलना मांगता है। ऑथर्स होता है, जैसा बुक्स का ऑथर होता है, उनको हर एक पब्लिश किया कॉपी का उसको हक मिलना मांगता है। तो ये पहले से ही लॉ था, तो चलते चलते बट इसको कोई ध्यान नहीं दिया। बट जब उनको समझा कि ये पायरेसी बढ़ रहा है और जैसे जैसे ऑडियो इंडस्ट्री बढ़ गया मुंबई में, इंडिया में, और उसका बहुत पायरेसी होने लग गया, तो म्यूज़िक कंपनीज ने सोचा कि हम लोग को कुछ करना चाहिए। देन उन्होंने कॉपीराइट लॉ अमेंड किया। अमेंड करने के बाद फर्स्ट इनिशियली ये कॉपीराइट लॉ जो था इट वाज नॉन कॉग्निजेबल एंड नॉन बेलेबल, नहीं इट वाज बेलेबल। बट अमेंडमेंट होने के बाद इट बिकेम कॉग्निजेबल एंड नॉन बेलेबल। अभी कॉग्निजेबल मीन्स व्हाट? पुलिस, अगर पुलिस को लेके गए तो पुलिस हैज़ टू टेक एक्शन, जो हम लोग बोलते हैं ना कॉग्निजेबल कंप्लेंट किया। और एक होता है नॉन बेलेबल, अगर हम लोग पकड़ता है द एक्यूज्ड, he cannot be bailed out from the police station, it has to be from the court। तो ये लॉ स्ट्रिक्ट कर दिया लोग। ये स्ट्रिक्ट होने के बाद द पुलिस एंड एवरीबडी गॉट राइट्स कि बाबा हाँ अभी हम कुछ कर सकते हैं रोकने के लिए। एंड ये जिम्मा उठाया वो लोग ने, सब म्यूजिक कंपनीज में एसोसिएशन फॉर्म करके, दे वांटेड सम पुलिस गाय टू रन दिस, बिकॉज इसमें पुलिस ही चाहिए रेड्स करने को या रोकने के लिए। सो दे अपॉइंटेड Mr. Julius Ribeiro as the chief coordinator of Indian music industry. So he was there for all the units over India. मतलब मैं तो सिर्फ मुंबई के लिए था, मुंबई, महाराष्ट्र, गोवा, बट उसका 4 यूनिट्स था, नॉर्दर्न, वेस्टर्न, ईस्टर्न एंड साउदर्न। तो हर एक जन का वापस सब कोऑर्डिनेटर था हर एक यूनिट्स के लिए, जैसा हमारे यहाँ पे भी था। तो उसके बाद फिर इन्होंने सोचा कि अभी हम लोग एक्शन लेते हैं, विल फॉर्म अ टीम एंड देन विल स्टार्ट ट्रेडिंग। वहाँ से शुरुआत हो गई। एंड ये यूनिट के साथ में व्हाट वाज योर बिगेस्ट रेड? अभी ऐसे तो बहुत सारे बिगेस्ट रेड थे। सी फर्स्ट थिंग, जब नया नया था तभी वी वर टोल्ड टू रेड्स ओनली शॉप्स। अभी शॉप्स में कोई तुमको बहुत बड़ी बात नहीं है, कोई भी शॉप में तभी जाता था तो वहाँ पे पायरेटेड कॉपीज़ मिलता था। तो पायरेटेड कॉपीज़ उसको जमा करने का, उसमें पुलिस को साथ में लेके जाने का, दिस इज वी डोंट हैव अ राइट टू रेड एनी प्लेस। सो फर्स्ट वी हैव टू गो टू द पुलिस, टेक देम विद अस। तो एंड देन हम लोग ढूंढ के निकाल के उनको देते थे। देन वी यूज्ड टू एक्सप्लेन द पुलिस हाउ दिस इज पायरेटेड। तो ये बाजू में करके देन वी हैव टू मेक अ रजिस्टर्ड केस, मतलब उसका FIR होता था। और जो दुकानदार रहता था उसको हम लोग एक्यूज बना के उसको जेल होता था 1 दिन का, जो नेक्स्ट डे उसको लाके कोर्ट में लाके उसको बेल होता था। तो ये हम लोग का काम था। लेकिन ये नॉर्मल काम, अभी कोई भी दुकान में जाओ तो कहीं ना कहीं तो मिल जाता है। बट मेन हम लोग को जो काम बोला था वो था कि ये बनता कहाँ पर है। शॉप्स में तो सिर्फ बेचते हैं, देखो उनका कोई गुनाह नहीं हो तो अपना सेल्स के लिए कुछ भी करते रहते। बट जो लोग बनाते हैं ना, वो लोग मेन अक्यूज्ड है कि वो लोग बनाते हैं कौन, और वो चोरी छुपे बनाते थे। अभी बॉम्बे के नुक्स एंड कॉर्नर्स में किधर बनाते थे किसी को मालूम नहीं था। तो वी वर टोल्ड कि तुम लोग इन्फॉर्मर्स जमा करो। अभी जब मैं नया जॉब में आया तभी मेरे पास तो कोई था नहीं, जैसे कोई इन्फॉर्मर कहाँ से लाऊं मैं, जैसे पुलिस के भी होते हैं इन्फॉर्मर्स होते।
डायरेक्ट कभी कोई चीज़ पुलिस भी नहीं करते, कोई तो उसको इन्फॉर्म करेगा, टिप देता है, तब पुलिस जाके पकड़ते भाई, चाहे वो कस्टम्स हो, एक्साइज हो, इनकम टैक्स हो, कोई टिप रहेगा तो ही उनको जाते। तो हम लोग को बोला गया कि तुम लोग इन्फॉर्मर्स को कांटेक्ट। तो मैंने अपने जितने भी दोस्त लोग थे म्यूज़िक फील्ड में ऐसे कांटेक्ट किए, भाई कोई है क्या, कोई है क्या। तो मुझे एक इन्फॉर्मर मिल गया जो कोई कैसेट कंपनी में पहले काम करता था। वो कैसेट कंपनी बंद हो गई थी, और वो जब मेरे कांटेक्ट में आया तो बोला तुमको क्या चाहिए वगैरह। तो मेरे को तो सब मालूम है कि इधर क्या बिकता है, क्या बनता है। तो मैंने बताया उसको कि मैं ऐसा ऐसा इधर एम्प्लॉय हुआ हूँ, तो मेरे को इन्फॉर्मेशन चाहिए। तो वो बोलता है मैं टिप दूंगा आपको, लेकिन फिर मुझे क्या मिलेगा। अभी ये बात तो मुझे भी मालूम नहीं थी कि उसको क्या देने का। तो मैंने जाके हमारे साहब लोगों को बोला कि ऐसा ऐसा है, इन्फॉर्मेशन आएगी, लेकिन फिर वो बोल रहा है कि उसको, तो बोला दे विल गिव देम अ रिवॉर्ड डिपेंडिंग अपॉन द साइज ऑफ द रेड, क्या मिला है उसके ऊपर वी विल गिव हिम अ रिवॉर्ड। तो मैंने उसको जाके बोला। तो फर्स्ट टिप विच आई गॉट फ्रॉम हिम वॉज अ बिग रेड इन चेंबूर, जहाँ पे मुझे उसने एक लड़का दिया था जो मुझे सुबह 4 बजे जाके ऐसे स्लम्स में जाके उसने जगह दिखाया, ऐसे 2-3 जगह दिखाए, और फिर मुझे बोला ये जगह है, यहाँ पे एक्चुअल कैसेट का प्रिंटिंग होता है। प्रिंटिंग मीन्स इट इज़ रिकॉर्डिंग ओनली, बट उसको प्रिंटर बोलते हैं। दोज मशीन्स आर नोन एज CCP, कैसेट टू कैसेट प्रिंटर। तो उस पर बोलते हैं यहाँ पर ये कैसेट्स बनता है, ये डुप्लीकेट कैसेट्स हैं ना, यहाँ पे बनता है। तो तभी मैंने बोला ठीक है करके देखते हैं। तो मैंने जाके अपने साहब को बोला, देन व्हाट वी डू इज दे अरेंज फॉर द पुलिस हेल्प, दे विल टॉक टू द हायर अथॉरिटीज, उनका सब जो कॉन्टैक्ट्स रहता है पुलिस का, उनसे बात करके हम लोग को बोलेंगे ठीक भाई ये टाइम में चेंबूर पुलिस स्टेशन जाओ। तो मैं भी वहाँ पर गया विथ माई ऑल सीनियर्स जो पुलिस ऑफिसर्स थे। तो उनके साथ जाने के बाद फिर वहाँ से पुलिस लोगों ने बोला कितना स्टाफ चाहिए। हम लोग ने बोला हम लोग कोई माल नहीं, लेकिन वी टुक अराउंड 3 PSIs एंड अराउंड 10 कांस्टेबल्स विथ वुमेन कांस्टेबल्स ऑल्सो, क्योंकि हम लोग को घर में जाने का था, तो हम लोग को मालूम ही नहीं था अंदर क्या है। एंड ऐसे होता है कि इन्फॉर्मर जगह दिखा देता है तुमको कि ये जगह है, लेकिन अंदर क्या है वो हम लोग को वो भी नहीं दिखा सकता। सो वी हैव टू डिपेंड ऑन हिज इन्फॉर्मेशन कि वो अंदर होगा। तो उसने सिर्फ मेरे को जगह दिखाया था। तो फिर पुलिस बोले ठीक है जगह बताओ। तो मैं पूरा स्टाफ पुलिस को लेके वो स्लम्स में गया, और जब वो रूम में नॉक किया और खोला तो देखा तो 2 people वेयर सिटिंग ऑन अ CCP रिकॉर्डिंग का मशीन, एंड दे वेर मैन्युफैक्चरिंग कैसेट्स। वो जैसे ही मिला तो हम लोग बोला मिल गया करके। बट ये रेड, मैसिव रेड में ऐसा टर्न आउट हो गया कि लिंक टू दैट देयर वर 3 to 4 यूनिट्स उसके आजू बाजू उसके ही थे, अलग अलग रेंटल प्लेसेस उसने ले लिए थे। ऐसे ही कर करके हम लोग ने हर एक जगह उधर रेड किया, एंड देन वी टुक आउट नियरली 1 truck load ऑफ कैसेट्स विथ 12 और 13 बिग साइज CCP। मतलब हम लोग को ट्रक लेना पड़ा सब सामान भरने के लिए। और यहाँ तक कि पुलिस स्टेशन में उनको जगह नहीं थी, वो बोले रखेंगे कहाँ ये, बिकॉज इतना सामान, उनके क्या चोरी का स्टोर रूम छोटा होता है, तो रखेंगे। वी हैव टू हायर 1 प्लेस फॉर पुलिस स्टेशन के बाबा ये हम लोग वहाँ रखेंगे। तो इतना बड़ा रेड हुआ वो टाइम में। दैट वाज माय फर्स्ट रेड, एंड आई मीन माय बॉस। क्या वैल्यू होगा अंदाज से ये सारी चीज़ों का? अभी इट डिपेंड्स। अभी वो टाइम में दिस वाज इन 98-99, तो तभी भी फिर भी इट वाज अराउंड 3 lakhs to 4 lakhs रुपीज़। आज की तारीख में वो 30-40 लाख का हो गया, ऐसा हो गया। तभी वो टाइम में वैसा रेट था, और तभी कैसेट्स थे सिर्फ, वो CC कॉम्पैक्ट डिस्क। तो वो मेरा सबसे बड़ा रेट था। और उसके बाद तो इट फॉलोड, एक के बाद दूसरा, दूसरे के बाद तीसरा, और बॉस मेरे खुश हो गए। दे गेव मी ऑल्सो अ रिवॉर्ड, एंड दे आस्क्ड कि अभी उसको क्या देने का। आई सेड व्हाटएवर यू फील प्रॉपर, डीम्ड फिट। तो लोग बोला कि ठीक है, उसको भी हम लोग ने शायद कुछ 10-15 हज़ार 20 हज़ार रुपया रिवॉर्ड दिया था। कभी ऐसा कोई रेड हुआ है जहाँ पे आपकी लाइफ को थ्रेट हो?
ऐसे तो या बहुत सामने 2-3 सामने भी अटैक कर दिया या रिटेलिएट किया? होते हैं। नॉर्मली शॉप्स में नहीं होता, क्योंकि शॉप्स में क्या होता है कि सब ट्रेडर्स होते हैं, दे आर नॉट वेरी हार्मफुल, ऐसा कुछ ऐसा क्राइम बैकग्राउंड के नहीं होते थे, तो वो तो नॉर्मली होता था। लेकिन वो लोग हम लोग को हमेशा बोलते थे, भाई जहाँ वो करता है उधर जाके करो ना, हमारे यहाँ पे क्यों करते हैं। एवरीबडी यूज्ड टू फील कि मैं ही काय को, बाकी सब भी कर रहे हैं। तो वो बोलते थे कि भाई तुम भिंडी बाज़ार में जाके करो, हाँ उधर डरते हैं क्या आप लोग। तो दो टाकी एरिया में एक आदमी है जो प्रॉपर रिलीजियस जो सेंटर रहता है उनका, उसके बाजू में उसका शॉप है, एंड आप करते नहीं है रेड, आप डरते हैं। तो एक दिन हम लोग ने ठाम उठाया था कि करेंगे, चलो ऐसे भी जगह में करेंगे, जो ये लोग बोल रहे हैं तो हम लोग वहीं पे करेंगे। तो वो एक एरिया में हम लोग ने एक रेड किया था, जहाँ पे मतलब हम लोग काम करने का टाइम कुछ अंडरग्राउंड टाइप पीपल आ गए थे, और हम लोग के हाथ पकड़े, हाथ खींचा, बोला क्यों कर रहे हो ये सब आप क्या कर रहे हो। मैंने बोला हम लोग अपना काम कर रहे। यहाँ तक के वो लोग बहुत ज़्यादा, हम लोग थे ज़्यादा से ज़्यादा 3 पुलिस 4 पुलिस थे, और हम लोग 4 जन थे, लेकिन उनकी थोड़ी तादाद उधर बढ़ गई, तो थोड़ा थ्रेट नहीं हुआ कि ये लोग कुछ भी कर सकते हैं अभी। तो हम लोग ने जितना सामान था वो ले लिया और बोला आप लोग पुलिस स्टेशन आ जाइए, उधर आपको हम लोग एक्सप्लेन करेंगे क्या है। मतलब यहाँ पे भी जान पे बनाई थी कि कुछ भी हो सकता है। ये एक इंसिडेंस था। दूसरा एक इंसिडेंस था कि और एक शॉप था विच वॉज ओन्ड बाय अ पॉलिटिकल लीडर। कोई एक पॉलिटिकल लीडर था, उसका शॉप था। तो उधर कोई रेड करने की हिम्मत नहीं करता था। तो वो बोला, कुछ लोग बोले कि वहाँ करो, वो तो बिंदास करता है, क्योंकि उसको मालूम था मेरे ऊपर कोई रेड नहीं करेगा। वो जगह में हम लोग जब ये रेड किया, हम लोग पुलिस को लेके गए, पायरेटेड सामान बाजू में निकाला, और पुलिस पंचनामा कर रहा है उधर, वहाँ जगह पे पंचनामा होता है, तो वो लिख रहा है। तब तक वो पॉलिटिकल लीडर वहाँ पे पहुँच गया, और उसने लिटरली पुलिस का हाथ खींच के, उसका पेन खींच के फेंक दिया, बोला इधर निकलो यहाँ से। और थोड़ी देर के बाद इतना मॉब जमा हो गया ना वहाँ पे, इतना मॉब जमा हो गया कि मतलब मेरे साइड में 2, इधर 2, उधर 2, और हमारे जितने स्टाफ थे ना उसके बाद में, और सबके हाथ में लाठी लकड़ियाँ वगैरह थे। और मैं क्या करेगा, तो मैंने क्या किया, फट करके थोड़ा साइड में आके एक पब्लिक बूथ से अपना हेड ऑफिस कॉल किया। तभी हमारे एक दूसरे एक ऑफिसर थे, भालचंद्रन, तो उनको बताया कि भाई ऐसा ऐसा हो रहा है, तो हम लोग क्या करने का इन दिस सिचुएशन। अभी तो कुछ भी हो सकता है, मतलब इधर तो राइटिंग हो सकता है, हम लोग मार भी खा सकते। तो बोलता है नहीं ये लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन है, यू बैक आउट। बोलता है वो रहने दो रेड वेड, बोलता है दिस इज़ वेरी रिस्की। तो मैंने जाके मैसेज पहुंचाया पुलिस को, तो पुलिस उठ गई। लेकिन वो मॉब था ना, बहुत डेंजरस मॉब था, मतलब सब मारने पे ही तुले थे हम लोग को कि तुम लोग इधर आए ही कैसे। तो पुलिस वाले ने कुछ कांटेक्ट किया उनके पुलिस स्टेशन से, तो तभी उन्होंने एक बड़ी वैन भेज दी हम लोग को उधर, वो पूरा मॉब को हटाने के लिए। तो उसमें कम से कम 20 पुलिस या 40 पुलिस थे। वो वैन आई, वो सब क्राउड को हटाया, लाठी चार्ज किया, फिर हम लोग को सेफली वो वैन में डाला। मैं तुम लोग चलो चलो अंदर बैठो। ऐसा करके हम लोग को वापस पॉलिटिशियन लेके आए। मतलब दैट रेड कुडंट हैपन। मतलब ऐसे भी कुछ केसेस हो गए। सो दिस इज प्रेजेंट ऑन पेपर या इट इज नहीं दबा दिया? नहीं कैसा हो, इसमें कुछ केस ही नहीं हुआ ना, देयर इज नो केस। तो ऐसे भी होता है कि मतलब जान पे भी बनाते हैं। इज दैट पॉलिटिकल फिगर स्टिल एक्टिव? अभी आई डोंट नो, बिकॉज इट्स आई मीन 20 years बैक, सो अभी तो कुछ मालूम नहीं। तो हम अज्यूम करके चलते हैं कि पॉलिटिशियंस का तो इसमें काफ़ी रोल था ही, लेकिन हमने मूवीज़ में देखा है और बहुत सारे एक्टर्स के, पुराने एक्टर्स के इंटरव्यूज़ में भी वो काफ़ी हिंट करते हैं कि अंडरवर्ल्ड के जो कुछ हमारे उस टाइम के कुछ लोग थे, उनका काफ़ी डोमिनेंस और कंट्रोल था बॉलीवुड इंडस्ट्री पे। तो ऐसा कोई कनेक्शन म्यूज़िक इंडस्ट्री से था कहीं, वो उनका कोई रैकेट चलता था इस सब में?
अभी बॉलीवुड इंडस्ट्री में ऐसे लोग हैं, मैं किसी का नाम नहीं लेना चाहता, बट ऐसे लोग हैं जो पायरेसी कर करके ही बड़े हुए, इतने बड़े कि उन्होंने अपना कंपनी फॉर्म किया। तो मतलब बोलते हैं ना, बाद में वाइट कॉलर हो गए। तुम कंपनी फॉर्म किया तो तुम वाइट कॉलर हो गए, फिर खुद के कॉपीराइट्स लेने लग गए। फिर वो लोग बोलते हैं कि बाकी लोग पायरेसी कर रहे हैं तो उनको रेड करो। तो ये उल्टा होता है, मतलब तुम खुद पायरेसी करके आ गया, फिर इसके कॉन्सिक्वेंसेस तो काफ़ी आपने सुना होगा, इसका मर्डर हो गया, उसका मर्डर हो गया, ये होता है, मतलब उसका रिफर्केशंस। तो ऐसे है, ये बॉलीवुड इंडस्ट्री में दुश्मनी बहुत होती है कि ये मतलब कैसे होता है, जैसा एक कंपनी है जो समझो वेस्टर्न इंडिया में उसका बहुत माल बिक रहा है, वो एक मूवी निकाला है, उसका बहुत माल बिक रहा है, लेकिन उसको उसका सेल्स फिगर से उसको मालूम पड़ता है कि नॉर्दर्न में या ईस्टर्न में उसका माल बिक नहीं रहा है, जो ओरिजिनल उसका कंपनी से जो जाता है वो माल बिक नहीं रहा है। बट इन अ सर्वे ही फाइंड्स कि उधर बहुत मतलब सेल हो रहा है, बट वो सेल दे वर ऑल डुप्लीकेट्स एंड नॉट डुप्लीकेट, दे वर काउंटरफीट्स। देयर इज अ डिफरेंस। काउंटरफीट्स मतलब ओरिजिनल कैसेट जो रहता है ना, एग्जैक्ट डुप्लीकेट, जैसे नोट बनते हैं, नोट कैसा काउंटरफीट होता है, वैसा कैसेट्स के भी, ओरिजिनल कैसेट्स के भी काउंटरफीट होते हैं। दैट दोज आर वेरी डेंजरस, बिकॉज कोई पहचान ही नहीं सकता, हम लोग भी पहचानने को बहुत बारीकी से देखना पड़ता है, तो ही तुमको समझेगा उसका प्रिंटिंग क्वालिटी, रिकॉर्डिंग क्वालिटी। कैसेट खोलने के बाद अंदर एक लीडर टेप रहता था, वो लीडर टेप पे कंपनी का नाम रहता था, वो नाम नहीं रहता है। तो ये सब देखने के बाद मालूम पड़ता था कि ये काउंटरफीट है। मतलब यू हैव टू सेंड इट टू द कंपनी टू फाइंड आउट कि बाबा ये सच्ची का है क्या, बिकॉज प्रिंटिंग क्वालिटी कभी कभी ओरिजिनल में भी खराब हो सकती। बट ये तो ऐसा होता है ना कि हम लोग कोई कस्टमर जाएगा तो उसको कैसा मालूम पड़ेगा। सो इस चीज़ में दुश्मनी हो गई कि वो लोग ने फाइंड आउट किया कि वो किसने किया है ये पायरेसी। उसमें बहुत सारे गफले हुए बॉलीवुड में। तो जब आप रेड करने का प्लान करते हो तो व्हाट इज़ द प्रोसेस, मतलब क्या एंटायर प्लानिंग कैसे होती है, प्रोसेस कैसे होती है अनटिल द डे दैट यू डू, ये क्या, ये हमें ज़रा समझाओ। सी फर्स्ट थिंग इज गेटिंग इन्फॉर्मेशन, लाइक आई एम टॉकिंग अबाउट, सी नॉट शॉप्स तो आपको मालूम होते हैं कि भाई मालाड में इतने शॉप्स है, बोरीवली में इतने शॉप्स है, उधर इतने शॉप। तो शॉप ट्रेडिंग मतलब कुछ को ज़्यादा कुछ नॉलेज नहीं लगता था, इन्वेस्टिगेशन नहीं लगता था। मैं एक दिन समझता था कोई कैसेट वाला, सी इन्फॉर्मर्स पैदा कहाँ से होते हैं, दुश्मनी से, या अंदर के ही आदमी लोग होते हैं। जैसा मैं आपको बताऊँ, दुकान में काम करने वाला आदमी, उसका सेट का, उसका पगार का कुछ प्रॉब्लम है तो वो हम लोग को फ़ोन करके बताएगा कि भाई मेरा सेट इधर पायरेसी कर रहा है, और वो बताएगा भी कहाँ पे छुपा के रखा है। सी पायरेटेड गुड्स डिस्प्ले नहीं होते थे, वो साइड में फ्रिज भी होगा तो फ्रिज में रखेंगे, कोई टेबल के अंदर है तो ऐसे कुछ फर्नीचर भी ऐसा बनाएंगे कि आपको समझेगा नहीं कि यहाँ पे ड्रॉवर है। तो ऐसे सब जगह में वो लोग छुपा के रखते थे। तो ये बोलने वाला कौन रहेगा, उनके अंदर के आदमी लोग रहते थे। तो ये हम लोग को पहले इन्फॉर्मर्स ही बोलते थे। तो लेकिन ये जो इन्वेस्टिगेशन करके हम लोग जो मैन्युफैक्चरिंग का निकलते थे ना, उसके लिए बहुत कम इन्फॉर्मर्स रहते थे। पर ये भी ऐसे ही लोग रहते थे, जैसे मैं आपको बोलूँ ना कि कोई माल पहुंचाने वाला रहता है, वो इन्फॉर्मर बोल के पैदा होता है। उसको क्या है, मेरे को यहाँ से पैसा मिलेगा, इन्फॉर्मेशन का पैसा मिलेगा, इसके लिए वो हम लोग को हमारे कॉन्टैक्ट में आ गया तो हमको इन्फॉर्मेशन देगा कि भाई इधर माल बन रहा है, उधर माल लेके जा रहे हैं। ऐसे इन्फॉर्मर्स रहते। सो फर्स्ट थिंग इज गैदरिंग इन्फॉर्मेशन, देन वेरीफाइंग दैट इन्फॉर्मेशन, चाहे वो शॉप हो या मैन्युफैक्चरिंग यूनिट हो, कि भाई उधर बन रहा है। अगर दुकान है तो वी हैव टू वेरीफाई, उधर जाके मिल रहा है तो डमी कस्टमर जाके हम लोग बने, हम लोग को तो पहचानते थे लोग मार्केट में, तो इसके लिए किसी डमी कस्टमर को भेज के जानबूझ के पायरेटेड कैसेट्स पूछने का, कंपाइलेशंस एंड एवरीथिंग, फिर वो दिया तो समझ जाने का कि ये बेच रहा है, कि दुकान में है। दिस वॉज वन वे। जहाँ मैन्युफैक्चरिंग होता था उसमें हम लोग को ज़्यादा नहीं समझता था कि बाबा हाँ इधर कुछ हो रहा है,
तो बस उतना ही था कि अंदर जाके ही देखना पड़ता। तो इसके लिए कभी रेड फेल भी होती थी कि अंदर खोल के देखा तो कभी कुछ नहीं रहता। तो गैदरिंग इन्फॉर्मेशन एंड देन हम लोग ऑफिस में जाते थे, वी यूज्ड टू डिस्कस विथ आई मीन रिबेरो वाज नॉट दैट इंटरेस्टेड कि तुम लोग क्या, बिकॉज ही हैड अपॉइंटेड सर्टन पीपल फॉर दिस। तो उसमें दे यूज्ड टू सिट एंड दे यूज्ड टू प्लान। बड़ा रेड करना है तो शॉप्स में रेड पे उनका कुछ प्लानिंग नहीं होता था। बड़ा रेड करना है तो उस पर रिस्क क्या है, एरिया कौन सा है, कौन सा पुलिस स्टेशन है, इसके अंडर कौन सा जुरिडिक्शंस आता है, वो पुलिस स्टेशन में कैसा कांटेक्ट करने का, हायर अथॉरिटी उधर का डीसीपी को कांटेक्ट करो, जोन का डीसीपी, उससे मदद मांगो। तो ये हम लोग का प्लानिंग होता था, कितना टाइम को पहुंचने का, क्या करने का, कहाँ खड़ा रहेंगे हम लोग। एक आदमी उधर खड़ा करेंगे, एक पुलिस स्टेशन पे जाएगा। वी हैव टू गो टू द पुलिस स्टेशन फर्स्ट, लॉज ए कंप्लेंट देयर। वहाँ पे डायरी बनता है पुलिस स्टेशन की। हाँ, अभी उधर का सीनियर को मिलते थे तो सीनियर बोलता था ठीक है मी तुम्हाला एक ऑफिसर देतो आणि 3 कॉन्स्टेबल देतो। तो यूज्ड टू गिव अस हेल्प। देन हम लोग उनको लेके वी यूज्ड टू गो टू दैट शॉप। उधर जाके अगर शॉप है तो उनको बोलता था हम लोग कहाँ से आए, क्या आए, क्यों आए। तो पुलिस भी था साथ में। तो फिर सर्च होता था। सर्च में हम लोग वो सब गुड्स निकालते थे, गुड्स को इकट्ठा करते थे। फिर पुलिस वहाँ पे 2 पंच को बुलाते थे। पंच इज विटनेस। तो कोई भी उधर का 2 आदमी लोग को बुला के उनके सामने पंचनामा करते थे शॉप पे या जगह पे। वो सब इकट्ठा करने के बाद वहाँ पे जो ओनर है, तो ओनर कभी कभी भाग जाता है, तो लेकिन वहाँ पे जो प्रेजेंट जो रहता है स्टाफ, उसको एक्यूज बनाते थे। और एक्यूज बना के उसको हम लोग पहले पुलिस स्टेशन जाते हैं। फिर वहाँ पे हम लोग का कोई भी हम लोग एक जन को FIR देना पड़ता था। बी बिकम द कंप्लेनेंट। तो हम लोग 3 जन में से कोई भी एक जन कंप्लेंट देता था। तो सपोज मेरा नाम है तो मेरा नाम से कंप्लेंट जाता। उसके बाद जो उसको जेल एंट्री होता था, उसका जेल एंट्री करने के बाद नेक्स्ट दिन उसका बेल होता था कोर्ट से। तो ये प्रोसीजर था पूरा। तो मुझे जो समझ में आ रहा है कि इन्फॉर्मर का बहुत ही इम्पोर्टेंट रोल है, इसकी शुरुआत ही इन्फॉर्मर से होती है। तो कभी ऐसा हुआ है कि इन्फॉर्मर थोड़ा दोनों साइड खेलने जा रहा था? ये तो बहुत हुआ तो है। उसके बारे में ज़रा बताओ। एक तो बहुत बड़ा किस्सा है और मैंने तो वो टाइम में ऐसा काम किया है कि हमारे एक ऑफिसर थे, रिटायर्ड ऑफिसर ACP चौबल बोल के। उसने तो मेरे को रिबेरो के सामने जाके इतना प्रेस किया था कि आदमी ने ऐसा काम किया जो पुलिस भी नहीं कर सकता था। एक रेड ऐसा हुआ था कि उसने मेरे को जगह बताया कि इधर ये लोग कैसेट बनाते, स्लम ही था। तो हम लोग वहाँ पे गए। जब रेड किया ना तब उधर ताला था। तो पुलिस को तो राइट था, पुलिस बोला कौन है ओनर, कौन है करके ओनर ढूंढ के निकाला। ओनर भी आया। वो बोलता है क्या है? तो हाँ मेरा बिजनेस है इधर। तो क्या अंदर क्या चल? बोले कुछ नहीं है, खाली है। तो अंदर कुछ भी नहीं है, मैं कुछ ओ कैसेट का हम पहले करता था, अभी नहीं करता हूँ। तो उसने बोला खोलो। जब अंदर गए तब लिटरली कुछ भी नहीं था, साफ। इट वॉज क्लीन लाइक एवरीथिंग हैड बीन मूव्ड। अंदर जो गुड्स रहते हैं, जो कुछ भी, सब चीज़ एकदम साफ सुथरा लग रहा था। कोई भी आदमी नहीं था, कोई भी एक कैसेट मिलने का नहीं था उधर किधर। पोलीस बोले काय इन्फॉर्मेशन हे असं काहीच नाही. म्हटलं इन्फॉर्मरने दाखवलं आम्ही काय करणार. पर मेरे को तो डाउट आया कि कुछ तो दाल में काला है. कि तो मैंने इधर उधर देखने को चालू किया तो जो डस्टबिन होता है ना, डस्टबिन में कचरा था. तो उसमें मैंने हाथ डाल के निकाला तो उसमें कैसेट्स का जो टेप होता है ना, उसमें बोलते वो लीडर टेप बोलता है. लीडर टेप के ऊपर कंपनी का नाम रहता है. तो वो मेरे को लीडर टेप्स मिला. तभी मेरे को समझ गया कि इधर काम तो चालू था, बट ये लोग ने हिलाया है इतना, मतलब एकदम परफेक्ट है. तो ये जब तक पुलिस बोला ठीक है, जब भी कुछ नहीं मिलता है तो पुलिस हैज़ टू डू नील पंचनामा. तो नील मतलब इधर कुछ मिला नहीं, तो उसका भी प्रॉपर प्रोसीजर रहता है, उनको लिखना पड़ता है, लिखा पट्टी करनी पड़ती है. तो उसमें मेरे को मालूम है कि 1 घंटा इधर जाने वाला है. तब तक मैं क्या किया कि मैं बाहर गया. अभी स्लम्स में तो सब लोग इंक्विजिटिव रहते हैं कि क्या हो गया. तो कुछ लेडीज़ थे, तो उनसे मैंने पूछा क्या ये इधर कुछ नहीं करता है क्या. तो लेडीज़ बोले नहीं
इथे रोज काम चालतं. मला मग आज बंद आहे काय माहीत. सकाळी लोक आले, बॉक्स उचलले आणि सगळे सगळे बॉक्स घेऊन कुठेतरी गेले. मेरे को समझ गया कि इसको इन्फॉर्मेशन मिल गया कि हम लोग आने वाले. अब ये दो ही जगह से हो सकती है, या तो पुलिस के थ्रू कोई लीकेज हुआ है, लेकिन यहाँ पे पुलिस का लीकेज बहुत डाउटफुल था बिकॉज हम लोग क्राइम ब्रांच से गए थे. क्राइम ब्रांच बोले सोशल सर्विस ब्रांच, तो उधर से लीकेज होना मुश्किल होता है. लोकल पुलिस से कभी कभी लीक होता है इन्फॉर्मेशन. तो ये हम लोग को समझा, तो मैं बोला अभी थोड़ा पूछताछ करते. तो मैं वो लेडी को पूछा कहाँ गए, तो बोलते इकडून नेले सगळे बॉक्स त्या बाजूला. ऐसा कर करके मैं जहाँ पे रोड आता है ना वहाँ तक पहुँच गया पूछताछ करके. भाई मैं ऐसी एक्टिंग किया कि एक जन को पूछा काय रे इथे सकाळी बॉक्स नेले, तो उधर एक लड़का खड़ा था. बोलता काय झालं, तो मैं बोला कि मेरे भी उसमें बॉक्स थे. ऐसा मैं झूठ बोला. अरे यार तो मेरे को माल लेने का है, तो वो इधर अभी बंद करके चला गया है, ऐसा कुछ. तो ऐसा मैंने एक्टिंग किया. तो बोला वो कोई टेम्पो में डाला और लेके गया. तो बोलते कहाँ गया, बोला मेरे को नहीं मालूम, लेकिन वो टेम्पो वाला थोड़ा आगे जाओ तो टेम्पो वाला उधर बैठा है. तो मैंने वो रिस्क लिया, चलो जाते. तो मैंने उधर गया, तो मैं उसको भूलिया भी पूछा. बोलते उधर देखो चक्की के पास कोई एक दाढ़ी वाला बैठा रहेगा ना, वो टेम्पो चलाता है. मैं उधर गया तो लकीली वो देखो कैसे स्टार्स भी फेवर करना पड़ते, वो तभी वहाँ पे बैठा था. तो मैंने उसको पूछा कि भाई सुबह तू बॉक्स लेके गया क्या, वो उधर का जो है कि उसका नाम लेके बोला. तो वो बोलता है हां मी नेले. म्हटलं कुठे नेले. म्हटलं अरे माझा माल आहे त्याच्यात, तू कुठे नेले, मला तर तो नाही आहे घरी, मला माझा माल काढायचा आहे. कुठे, अरे मी ते 30 नंबरमध्ये नेले, मेरे को एड्रेस बताया. अभी उसने सिर्फ मेरे को इतना ही बोला कि बिल्डिंग नंबर 30. अभी बिल्डिंग नंबर 30 में किधर क्या, वो कुछ नहीं बोला. अभी ज़्यादा भी पूछता तो उसको डाउट आता था ना. तो मैंने बोला ठीक है. तब तक मैं वो बिल्डिंग नंबर 30 में गया. इट वॉज लाइक अ हाउसिंग जो रहता है ना म्हाड़ा टाइप कॉम्प्लेक्स, वैसा था. अभी इतने टेनेमेंट्स देखे उधर, बोला इसमें अभी कौन सा रूम ढूंढूं, वो कहाँ पे माल लाए. इट वॉज वेरी डिफिकल्ट. अच्छा पूछने के लिए भी कोई, हर घर में जाके सब रेसिडेंस ही लग रहे थे. तो मैं उसके बाजू पीछे साइड में थोड़ा हटमेंट्स था, तो उधर गया और उधर एक औरत कुछ पापड़ सुखा रही थी. उसको मैंने पूछा अरे इथे कॅसेटचं काम कुठे चालतं, इथे या बिल्डिंगमध्ये कुठेतरी कॅसेटचं काम चालतं. हाँ इथे या खोलीत चालतं बघा. तो उसने पीछे से दिखाया मेरे को, ऐसा मतलब बिल्डिंग का बैक साइड था. तो अच्छा तिकडे गया. तो मैं ऐसा गया और उसका विंडो खोल के मैंने थोड़ा सा पीप इन किया, तो आई कुड सी बॉक्सेस ऑफ कैसेट्स. तो मेरे को सोचा यही जगह है, ग्राउंड फ्लोर में था. तब तक मैंने मेरा ऑफिसर को फ़ोन किया, तभी तो मोबाइल्स नहीं थे पर पेजर था. तो पेजर से मैंने उसको मैसेज मिला कि आप जाओ मत, आप वहीं रहो और 15 मिनट रुको, मैं थोड़ा एकदम कुछ पहुंचा हूँ, लेकिन उसको जाने को मत दो आप. तो मेरा जो सीनियर था मोगे साहब, बोला ठीक है आम्ही यांना थांबवतो काहीतरी करून. तो उसने कुछ बहाना करके पुलिस को रुकाया था वहाँ. तो फिर इतना करके मैंने आगे से देखा तो रेसिडेंस था, मतलब दरवाज़ा खुला भी था. मैं अंदर देखा तो कोई एक कपल, बुढ़ा कपल ऐसा बैठा भी था. मतलब आगे से रेसिडेंस था, पीछे एक रूम था जिसमें वो माल रखा था. तो मैंने उनको कुछ पूछा नहीं. फिर मैं भाग के वापस गया वो जगह पे और मेरे सीनियर को बताया, मतलब ऐसा है. तो बोला संजीव तेरी खबर पक्की है ना. मतलब हाँ पक्की है, मैंने अपने आंखों से देखा है. तो फिर वो वैन में जब भी हम लोग निकले तो जो ओनर था वो तो हंस रहा था, कुछ नहीं मिला, देखा मैं कुछ नहीं करता लाइक. तो फिर पुलिस को बोला, पुलिस ऐसा उसको बोला चल तू बैठ वैन में. तो वो सैप्ट हो गया, मतलब मैं क्या किया है, मतलब मेरे को काय को लेके जा रहा है. तो बोलता है चल थोड़ा घुमाने को लेके जाते हैं. वहाँ से उसको बिठाया और हम लोग पूरा वैन लेके सब स्टाफ को लेके पूरा वो बिल्डिंग में गए. और वो रेसिडेंस में हम लोग गए, रूम में अंदर गया. बैक साइड में और एक रूम था जो उसका पहला रेसिडेंस था, पीछे एक और एक रूम था, उसमें पूरा माल मिला था. तो ये जो था ना एक फेल्ड रेड. फिर बाद में मैंने जब भी इंक्वायरी किया कि इन्फॉर्मेशन कहाँ से गई, तब भी हम लोग को समझा कि ये जो इन्फॉर्मर था उसने ही हम लोग को भी बोला कि इधर माल है, और उधर जाके ओनर को बोला कि तुम पे आज रेड होने वाला है. तो उसे पैसे हेटने का, देख मैं तेरे को इन्फॉर्मेशन दिया, पुलिस आने वाले, तेरा माल बच गया, तो वो उसको पैसा देगा. मतलब ऐसे दोनों डबल गेम खेलते हैं ये इसमें. पुलिस के साइड से लीक हुआ है कभी, जैसे ये इन्फॉर्मर के साइड से हो, पुलिस भी करती है? होती. कैसे होता है मैं आपको बताता हूँ. अभी जब भी कॉपीराइट किसको मालूम नहीं था
तभी इन्फॉर्मेशन लीक नहीं था, हम लोग लोकल पुलिस स्टेशन से करते थे, जैसा बोरीली हो, मालाड हो, जिधर जो जुरिडिक्शन है उसके लोकल पुलिस स्टेशन से हम लोग रेड करते। बट बाद में हम लोग ने देखा कि जब हम लोग शॉप्स में जाते थे तब माल बिक रहा है, जब हम लोग पुलिस स्टेशन में जाते थे और पुलिस को लेके वो शॉप में जाते थे तो कुछ भी नहीं मिलता था। फिर हम लोग को डाउट आने लग गया कि यहाँ से कोई तो उनको खबर जाता है कि भाई तेरे बाप लोग आए हैं पुलिस स्टेशन में, खाली कर। तो ये इन्फॉर्मेशन जाने लग गया। उसके बाद फिर हम लोग के बॉसेस ने क्या किया कि वी यूज्ड टू गो टू क्राइम ब्रांच। क्राइम ब्रांच मतलब जो कमिश्नर ऑफिस है, उधर एक साइड में एक सोशल सर्विस ब्रांच बोल के एक जो है, उनके पास वो कॉपीराइट का दिया था जिम्मेदारी रेड्स करने का। उनका अदर भी थे, जैसे बार है, ये है, वो है, उधर रेड करते थे। तो वहाँ से हम लोग पुलिस लेके जाते थे, तो लोकल पुलिस स्टेशन में खबर ही नहीं पड़ता था कि हम लोग आ रहे, और हम लोग तभी जाते थे तभी मिलता था। यानी कि इन्फॉर्मेशन जाती थी उनको पुलिस साइड से भी। अभी कौन करता था, क्या करता था, हाउ दे वर लिंक्ड, वो तो अभी जग जा ही रहे कैसे रहते हैं कॉन्टैक्ट्स। अभी क्या सिचुएशन है विद द एसोसिएशन दैट यू वर वर्किंग विद? आर दे स्टिल एक्टिव? बिकॉज आई थिंक कैसेट्स को बंद होके काफ़ी साल हो गए। नहीं, मैं अभी तो पायरेसी ऐसा कुछ चीज़ ही नहीं रहा, बिकॉज ये कभी हुआ, इसके लिए हम लोग का कंपनी भी बंद हो गया। कंपनी बंद हो गया मतलब लिटरली रेड्स सब, आई थिंक दिस हैपेंड इन 2004-2005। जब भी तब तक सीडी आ गए थे, सीडी तो फुटपाथ पे आने लग गए, मतलब ऐसे हॉकर्स लोग बेचने लग गए। इतना पायरेसी हुआ था कि लास्ट में हम लोग तो बीएमसी जैसा काम करने लग गए थे कि भाई रेलवे स्टेशन पे जाओ और पूरा उठाओ चादर, ऐसे हम लोग करने लग गए थे। मतलब पायरेसी बहुत बड़ा स्केल पे गया। एंड देन इंटरनेट के द्वारा इतना कि घर घर में पायरेसी चालू हो गया। अभी कहाँ तुम जाएगा, जैसा मेरा घर है, तेरा घर है, इसका घर है, उसका, सब लोग अपना इसमें डुप्लीकेशन करते थे। नॉट नेसेसरी कि वो सेल भी करते थे, बट तुम कहाँ जाएगा, बिकॉज ऑफ इंटरनेट तभी ख़त्म हो गया। मतलब रेट्स हम लोग का कुछ होता ही नहीं था। जो लोग बड़े बड़े रेट्स करते थे वो लोग ने बंद कर दिए कि भाई अभी करना ही क्या, क्योंकि सब जगह तो अभी सब लोग अपने घर में ही कर रहे, तो पायरेसी भी ख़त्म हो गई। और फिर अभी उसके बाद तो अभी सिचुएशन ऐसा है कि यूट्यूब है, सब तुम लोगों को म्यूज़िक मिल रहा है थ्रू नेट, तो अभी वैसा पायरेसी ऐसी कुछ चीज़ ही नहीं। कोई आज कैसेट और सीडी है क्या आज मार्केट में? कुछ भी नहीं है। जो बेच रहे वो कहीं कोई लेता नहीं है। आस्ते से दुकान भी बंद हो गए, ऐसे हम लोग का भी यूनिट बंद हो गया ऐसे में। तो आपने कभी वो यूनिट बंद होने के बाद कभी ऐसे इन्वेस्टिगेटिव रोल्स में वापस जाने की कोशिश नहीं की, क्योंकि आप काफ़ी ऐसे इंटरेस्टेड लगते हो इस फील्ड में? ऐसे था कि ये यहाँ से निकलने के बाद, मतलब जो यूनिट बंद हो गया, एक मतलब दूसरा चीज़ का भी डुप्लीकेशन होता है, नॉट नेसेसरी कैसेट्स, जैसे ग्लव्स होता है, सर्जिकल ग्लव्स, या तुम्हारा HP का प्रिंटर का वो क्या बोलता है उसको, प्रिंटिंग का जो कार्ट्रिज होता है, उसका डुप्लीकेशन होता है। तो उसके भी रेट्स होते थे। हम लोग तभी भी करते थे पहले। जो रिबेरो साहब की लड़की थी नीना इंजीनियर, वो हैंडल करती थी। HP खुद आते थे, और मतलब अमेरिका से उनके डेलीगेट्स आते थे और हम लोग के साथ रेड में चलते थे। इवन दे वर सरप्राइज्ड कि HP जैसा कार्ट्रिज बनाने के लिए इनको करोड़ों की फैक्ट्री लगती है US में, हम लोग यहाँ पे झोपड़पट्टी में बनता है। इंडियंस आर सो स्मार्ट। मतलब आप देखोगे तो लिटरली हटमेंट्स में, मरोल बिरोल साइड में हम लोग गए हैं, झोपड़पट्टी है, प्रिंटिंग का हर एक सामान है उनके पास। उनको प्रॉपरली ये लोग भर के ओरिजिनल जैसा बना के, ओरिजिनल फॉइल में पैक करके, सील करके, बॉक्स में, प्रिंटेड बॉक्स में पैक करके मार्केट में बेचते थे, और लोग खरीदते थे क्योंकि वो एग्जैक्टली वैसे ही लगता था। तो ऐसे भी होता था, तो उसके रेट्स हम लोग करते थे। और यहाँ से जाने के बाद फिर जो एक IPS ऑफिसर थे, मतलब वो मेरे से अटैच थे थोड़े, भालचंद्रन साहब बोल के, तो उनको मालूम था मेरा कैलिबर है, तो वो मेरे को ऐसा प्राइवेट केसेस उनके देने लग गए। बोला कि आप ये करो, मैं आपको इसके थ्रू पैसे, तो ऐसे मैं छोटे मोटे केसेस करता था।
If you get a chance to be in a similar role now, at this point of your life, would you accept it? Not exactly in piracy, because piracy is नहीं, not piracy, but ऐसा raids करना, investigate करना, mysteries solve करना. अभी वो टाइम में 20 years back I was much younger. अभी ऐसा लगता नहीं कि वो सब काम मैं कर सकता हूँ. So अब अपने पीक पे थे तभी तो ऐसे हाँ, प्राइम. I mean odd timings. कभी टाइमिंग नहीं रहता था हमारे जॉब को. रात को सुबह 6 बजे हम लोग रात को कभी एक दिन हम लोग घर पे नहीं आते थे. रात भर पुलिस स्टेशन में पंचनामा एफआईआर होता था. उतना पैसा मिलता था क्या? नहीं, हम लोग के वो हिसाब से सैलरी बहुत कम थी. हम लोग इसके लिए काम करते कि भाई रिवॉर्ड्स मिले, भाई उधर से कुछ रिवॉर्ड मिले तो एक्स्ट्रा मनी मिले. तो सैलरीज तो एकदम कम थे. दिस इंडियन म्यूजिक इंडस्ट्री वॉज लिंक टू IPL. IPL तो अभी भी इट्स ऑन. IPL म्हणजे इंडियन फोनोग्राफिक इंडस्ट्री. जो कोई भी म्यूजिक सिस्टम यूज़ करता है रेस्टोरेंट्स में किधर भी, तो दे हैव टू टेक अ लाइसेंस. वो जो इंडियन फोनोग्राफी इंडस्ट्री है ना IPI करके, तो उनसे वहाँ से लेना पड़ता है. तो IMI वॉज अ सिस्टर कंसर्न ऑफ IPL. तो वो अभी भी चालू है. एंड दैट विल रिमेन. म्यूजिक इंडस्ट्री तो सब जगह चलते ही रहता है ना म्यूजिक. तो दे हैव टू टेक परमिशन, उनको पैसा भर के. So thank you so much for being on the show with us today. बहुत मज़ा आया. हमें तो एकदम इंटरेस्टिंग लगा ये फुल सेगमेंट ही. अभी तो ख़त्म ही नहीं होगा, लेकिन आपको टाइम नहीं है करके, वरना तो ये और लंबा चल. अगर ऑडियंस अच्छा रिस्पॉन्ड करती है, वी विल डू अनदर एपिसोड विच वुड बी ऑफ अ मच लॉन्गर ड्यूरेशन विथ यू. हाँ, क्योंकि ये चैप्टर तो हमें जानना है 100%. हाँ, तो वही आपने तो लीगल केसेस के बारे में पूछा नहीं. लीगल केसेस के आगे क्या होता है वो तो बहुत लंबा तो किस्सा फिर है. तो पार्ट 2 बनता है. Thank you so much for making it this far in the video. If you enjoyed this video, don't forget to like, share and subscribe. Also, let us know in the comment section what other kind of videos you would like us to explore. And that's it for now. Thank you guys.